हेलो बच्चों, दिस इज़ योर पूजा मैम फ्रॉम केवी लामाखोंग इम्फाल नंबर 3. This is the second part of video of chapter 1 history, that is the French Revolution. In first part of video we had discussed about the situation of France in the reign of Louis XVI. As you all know that Louis XVI was the king at that time in France and Marie Antoinette was his wife. Here we will start with the social division of France in 1789. As you know that there were several reasons behind the French Revolution. One reason that we had discussed in the first part of video was that the king got its treasury empty when he got throne. किंग के पास पैसा नहीं था. Okay, so here we will discuss another reason, that is the social division of France at that time or the feudal system. तो सोसाइटी उस समय फ्रांस में कैसे डिवाइडेड थी. तो फर्स्ट वन जो था वो जो क्लास थी फ्रांस की उस समय पर वो थी क्लर्जी, सेकेंड क्लास नोबेलिटी एंड जो थर्ड क्लास में पीपल आते थे उनको बोलते थे द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट. जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थे they were exempted from paying any of taxes and all the works, all the taxes was paid by the third state people only. Clergy state में जो people आते थे they were people belong to the church. Second state nobility means the ministers or the officials or the knights of the kings. एंड जो लास्ट क्लास बस्ती थी जिसको हम थर्ड स्टेट बोल रहे हैं उस पे जो लोग आते थे लाइक पीजेंट्स, फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन पर्सन्स etc. 90% of the people of France belong to the third state. Only the third state had to pay taxes. तो जो 90% people थे फ्रांस में that belong to the third state. That was yet another annoying cause for the common people to revolt against the government. मीन्स क्योंकि थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना था एंड जो फर्स्ट टू स्टेट्स थी दे वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स. इस वजह से भी जो फ्रेंच पीपल हैं उन्होंने रिवोल्ट किया. अभी एक वर्ड हमने बोलना था द फ्यूडल सिस्टम. मीन्स उस टाइम जो फ्रांस में जो एक सिस्टम रन करता था जिसको फ्यूडल सिस्टम बोलते थे उसका क्या मतलब था कि फ्यूडलिज्म वाज अ डोमिनेंट सोशल सिस्टम इन मिडिवल यूरोप. मिडिवल यूरोप में फ्यूडलिज्म एक डोमिनेंट सोशल सिस्टम था इन विच द नोबिलिटी हेल्ड लैंड्स फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज. जो नोबिलिटी क्लास थी they got land from king in exchange of their military services. So you can say जो लैंड राइट था वो किसके पास था, वो नोबिलिटी के पास था. while the peasants were obliged to live on their lord's land and give him honor, labor and a share of their produce. जो peasants थे they were obliged to work in the fields of lords and to give him honor and labor and also some portion of the crops they grew in that land. All the works had to be done by the peasants only, by the third state only. and जो फर्स्ट स्टेट हो गया कुछ नहीं करना है, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी दे हैड ऑल द लैंड्स एंड जो थर्ड स्टेट है उसी को सारा काम करना है. और जो 90% ऑफ द पीपल ऑफ द फ्रांस है अभी मैंने बताया वो किसको बिलोंग करते थे, थर्ड स्टेट. जबकि while the 60% of the land in France was owned by the nobles and churches and other richer members of the society. while जो land का means अगर 100% पूरी land है तो उस land का जो total 60% number है that was held by the nobles
and the people of churches and the richer member of the society. Only the 40% of the land, जो remaining land थी वो किसके पास थी? peasants के पास थी. जबकि they were in large number, they were the 90% of the total population of France. The members of first two state, clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these were exemption from taxes. तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के जो मेंबर थे लाइक क्लर्जी एंड नोबिलिटी, दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मीन्स दे हैड सर्टेन राइट्स which they got by their birth only. If a person take birth in the noble family or in the family of clergy, he has the right to enjoy all the privileges, all the rights which at that time these two classes enjoyed. But एक साथ साथ इनको जो और एक राइट मिला हुआ था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वर्स, दे वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस टू एनी वन. द नोबल फर्दर enjoyed feudal privileges which included feudal dues that they extracted from the peasants, as well as peasants were obliged to offer their services to the lord. मीन्स जो सेकेंड क्लास थी नोबल, वो फ्यूडल प्रिविलेज भी उनको मिलता था. फ्यूडल प्रिविलेज का मतलब है कि जो उनके पास लैंड होती थी उस पर पीजेंट्स वगैरह काम करते थे, एंड काम करने के बाद अपने क्रॉप्स का एक पर्टिकुलर पार्ट उनको देते थे, एंड इसके साथ साथ दे वर्क इन देयर फील्ड, उनके फील्ड्स में काम करते थे. दे सर्व इन देयर आर्मी एंड टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रूट्स. तो जो थर्ड स्टेट के पीपल थे वो उनके लिए फील्ड्स में काम करते थे, उनकी आर्मी को सर्व करते थे, एंड समटाइम्स जो रोड वगैरह बनाने होते थे उसमें भी वो काम करते थे. Next is tithe. Tithe was a tax levied by a church on the peasants in which they had to pay 1/10 of their produce. तो here are two types of tax जो कि उस टाइम पर लिए जाते थे. One is tithe and another is tithe. तो what is tithe? Tithe was a tax levied by the church. Tithe जो टैक्स था वो किसके द्वारा लिया जाता था? It was levied by church. and किससे लिया जाता था? अभी हमने पहले बोला कि जो सारे टैक्सेस हैं दे वेर टेकन ओनली बाय द थर्ड क्लास, ओनली बाय द पीजेंट्स. तो पीजेंट्स को अपने प्रोड्यूस का 1/10% जो था वो किसको देना पड़ता था? चर्च को. इट वॉज नोन एज टाइथे. अनदर टैक्स इज टाइले. इट वॉज अ डायरेक्ट टैक्स दैट ऑल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टू द स्टेट. टाइले जो टैक्स था इसमें थर्ड स्टेट के सभी मेंबर आते थे, एंड दिस टैक्स वॉज पेड टू स्टेट, मीन्स किंग को जो टैक्स मिलता था दैट वॉज टाइले. ओके. as well as member of indirect taxes were also levied on the goods of daily consumption like salt or tobacco. इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स डेली कंजप्शन की जो चीज़ थी उन पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता था. जैसे आज भी हम देखें, अभी हम वी परचेज सेवरल things but directly we don't pay taxes, but in the MRP of that particular thing what we purchase, the tax is included, to which we call the indirect tax. Okay, come to the next reason of French Revolution. अभी तक हमने दो रीज़न डिस्कस किया. फर्स्ट रीज़न that because the king had no money when he got thrown, the treasury was empty. ये भी एक रीज़न बनेगा, बिकॉज ड्यू टू फिलिंग हिज ट्रेजरी ही विल इम्पोज सम टैक्सेस ऑन द पीपल, जो कि रिवोल्ट का कारण बनेगा. सेकेंड हमने डिस्कस किया कि थर्ड स्टेट को जो सोशल डिवीजन था उसमें जो सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर थे दे ओनली वेयर सपोज टू पे टैक्सेस. एंड अनदर रीज़न इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव. लेट्स सी. Population growth. The population of France rose about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. Means at 1789 the population arose from 23 million to 28 million. Mean 5 million population का growth हो चुका था from 1715 to 1789. Due to that, there was a rapid increase in the demand of food grains, resulting the high price of bread, which was a staple diet of the majority. And at that time, जो majority people की diet थी, it includes bread.
तो अभी क्या हो रहा है कि फूड ग्रेन्स की डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फुलफ़िल करने के लिए फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, एंड क्योंकि फूड ग्रेन्स की डिमांड्स बढ़ी इसलिए उनका प्राइस भी बढ़ेगा. तो द फूड प्रोसेस were raising rapidly, but the wages of workers were not increased by their masters. मीन्स फूड ग्रेन्स के प्राइस तो हाई हो रहे थे, बट जो वेजेस मिलते थे वर्कर्स को, मीन्स उनको काम करने के बदले में जो उनको अर्निंग होती थी, जो पैसा मिलता था, वो उतना ही था जितना पहले मिलता था. मीन्स 1715 से लेकर के पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स आर इंक्रीजिंग, बट the wages of the workers were very low. There was no increase in the wages of worker. That's why the people were struggling. Things became worse when France was hit by a drought or hail. This led to subsistence crisis. And चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती थी कब, जब सम टाइम कभी अगर कोई ड्रॉट पड़ जाता, मीन्स सूखा आ जाता या हैवी रेनफॉल हो जाता, ड्यू टू विच जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते. तो उसकी वजह से क्या होता कि people struggled a lot to survive, and this term is known as subsistence crisis. Subsistence crisis means an extreme condition when the basic means of livelihood are endangered. Mean when the people are struggling to surviving, to getting their food, to getting their clothing, or to water, or to clean air, and basically द फूड. जब वो फूड के लिए स्ट्रगल करते हैं तो इसको बोला जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस. ओके, कम टू द नेक्स्ट रीजन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ 3 philosophers. One is Montesquieu, second one is Rousseau, and third one is John Locke. At that time in France, some philosophers were emerging like Montesquieu, Rousseau, John Locke, who were inspiring people to struggle for their survival and to oppose the present government system, जो कि उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था. तो दिस वॉज द अनदर रीजन, मीन्स द ग्रोइंग मिडिल क्लास. उस टाइम पर फ्रांस में क्या हो रहा था कि इन द पास्ट द पीजेंट्स हैड रिवोल्टेड सेवरल टाइम अगेंस्ट फूड scarcity, rising food prices and increasing taxes, but they did not have proper means, as well as such people were very less in number too, as these were the same who were a little prosperous, had access to education and new ideas. मीन्स क्या हो रहा था कि अगर पहले फ्रांस में ये जो एजुकेटेड पीपल थे वो बहुत कम होते थे, बहुत कम नंबर में होते थे, और जो होते भी थे वो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था. दे वेर अ लिटिल प्रॉस्परस, एंड एजुकेशन पाना और नए आइडियाज़ गेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. बट ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 18th century, फ्रांस saw an emergence of several new social groups. These people were called middle class people. Means by the last part of 18th century, फ्रांस में कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स इमर्ज होने लगे जिनको बोला गया मिडिल क्लास पीपल. मिडिल क्लास पीपल का क्या मतलब है देखते हैं. These members of the society were a little prosperous too, because they earned their wealth through increasing trade due to industrial revolution in Europe. Means ये जो middle class people थे, they were not dependent on the agriculture for their earning. At that time in Europe, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हो रहा था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था. तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दीज पीपल अर्न देयर वेल्थ थ्रू इंक्रीजिंग ट्रेड. तो दे वेर अर्निंग थ्रू ट्रेड, नॉट बाय द एग्रीकल्चर. अलॉन्ग विद merchants, this so called middle class
also included professionals such as lawyers and administrative officers. They all were educated and believed in a system where everybody should be treated equally. They believed that nobody should be privileged by birth and their social position must be depend on their merit. तो ये जो मिडिल क्लास पीपल थे, इसमें वो पीपल जो ट्रेड कर रहे थे, एक सम प्रोफेशनल भी उसमें थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और लॉयर्स, और ये सभी लोग जो थे वो एजुकेटेड थे एंड ये बिलीव करते थे, दे बिलीव इन द सिस्टम वेयर एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. मीन्स nobody should treated like this कि he is a clergy, he is a nobleman, he is a peasant, he is a this or that. मीन्स सबको एक समान ही ट्रीट किया जाना चाहिए था. दे ऑल वेर एजुकेटेड, ये सभी कैसे थे, पढ़े लिखे लोग थे. दे बिलीव्ड नोबडी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, रेदर देयर सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन देयर मेरिट. मीन्स इनका मतलब था कि जो बाय बर्थ प्रिविलेज मिल जाते हैं, जो बाय बर्थ राइट्स मिल जाते हैं, वो नहीं मिलने चाहिए. जो राइट्स मिलने चाहिए वो किस बेसिस पर होने चाहिए, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट. मीन्स द मेरिट ऑफ द पीपल. ओके, तो जो फिलोसफर्स भी जो इस टाइम पर इमर्ज हो रहे थे, देखते हैं कि उनका क्या रोल था. अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा कि मिडिल क्लास पीपल कहाँ से इमर्ज हुआ और उन्होंने क्या रोल प्ले किया. तो ये जो मिडिल क्लास पीपल है, यही इंस्पायर करेगा या इंस्पायर होगा थ्रू द फिलोसफर्स. ओके, तो philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau put forward the ideas of society based on liberty, freedom, equal laws and opportunities for all. तो ये जो philosophers थे, these philosophers only put the idea of liberty, freedom, equal laws and opportunity for all. इनका कहना था कि सभी को हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें फ्रीडम होनी चाहिए अपना काम करने की, लॉ शुड बी इक्वल, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, एंड वी शुड ऑल get same opportunities to grow. John Locke, in his book True Treatise of Government, sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. True Treatise of Government, this is book written by John Locke. इसमें उन्होंने बोला है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन है, मीन्स whenever the king says I am the divine power, और जो मैं बोलता हूँ वही होना चाहिए, या जो किंग ने बोला दैट इज़ द ओनली रूल, तो जो इस तरीके की चीज़ें हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन को फॉलो करती हैं, कि मीन्स आई एम द सन ऑफ द गॉड, आई एम रिप्रेजेंटिंग द गॉड. तो जो किंग जब ऐसे बोलता था, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क मीन्स किंग का भी जो एब्सोल्यूट राइट है उसको उन्होंने अपोज किया. Second, Rousseau proposed a form of government based on social contract between people and their representative and laid the basis of democratic form of government. रूसो ने क्या प्रपोज किया? ही प्रपोज कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स जो गवर्नमेंट है दैट शुड बी चूज्ड बाय द पीपल. The representatives of the people should be there in the government and it should be a democratic form of government, जैसे कि आज हमारी गवर्नमेंट है. थर्ड, Montesquieu in his book In the Spirit of Laws, Montesquieu की बुक है In the Spirit of Laws, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया, he proposed the division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. उन्होंने प्रपोज किया कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है इट शुड बी डिवाइडेड इन लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियरी पावर. लाइक टुडे वी हैव द such type of government. When 13 colonies of the USA were set free by Britain, the government of this model was very first put into force in there. तो ये जिस तरीके के ये जो फिलोसफर्स थे उस टाइम पर जैसी बातें कर रहे थे, तो अभी हमने जाना था ना कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्रांस ने सपोर्ट किया था टू गेटिंग देयर इंडिपेंडेंस. तो इन 13 कॉलोनीज़ यूएसए की 13 कॉलोनीज़ में इसी टाइप की गवर्नमेंट सेट हुई, जहाँ पर इक्वल लॉज थे, गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव एंड इट वाज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो यूएसए ने उसको फॉलो कर लिया उस टाइम पर.
तो जो पीपल ऑफ फ्रांस थे, दे वर ऑल्सो इंस्पायरिंग, दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ वी शुड चेंज अवर गवर्नमेंट, हाउ शुड वी अपोज द king, and how we can get the rights. Okay, children, how the revolution happened, and what will be the incident that took place in the revolution, we will discuss in the next video. Till then, stay safe and stay at home. Thank you. And if you have any queries, please ask me anytime. Okay, thank you once again.